very detailed topic, and I was thinking, how am I going to address both the topics? And I was given almost 90 minutes, but I never want to take the whole of the 90 minutes because आपकी जो attention होती है वो 20 मिनट के बाद retain नहीं रह सकती है. So कुछ slides में मुझे skip कर दूँगी और कुछ slides के ऊपर हम ज़्यादा focus करेंगे जो अभी तक हमने नहीं discuss किया. So, concept of beauty has been explained in the past two lectures very nicely. लेकिन थोड़ा सा touch करूँगी जो points इसमें अभी discuss हमने नहीं किए. Okay. To understand beauty, we have to understanding beauty when we are working in aesthetics is very important. अभी जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं कि जो 5 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग आपने की है, आपने जो गोल्डन रेशियो देखी है, जो डिवाइन प्रोपोर्शन देखी है, दे आर ऑल सम्स अप इन अंडरस्टैंडिंग ब्यूटी एंड योर एस्थेटिक प्रैक्टिस. Beauty actually, as explained in 13th century by Saint Thomas Aquinas, is harmony, proportion and clarity. These 3 words, they explain everything. It's, I believe, harmony, which is a balance, proportion between different things on your face, like your eyes, the distance between the eyes, the nose, the shape, the height of the nose, and clarity of your skin. So it sums up everything. Only these 3 words that were explained in 13th century by a philosopher. Beauty perception is universal. जब भी आप देखेंगे कोई भी खूबसूरत चेहरा वो किसी भी रेस से बिलोंग करता हुआ आपको वो अट्रैक्ट करेगा, अच्छा लगेगा. क्योंकि अभी जैसा डॉक्टर रजा ने बताया कि उसके अंदर ऐसे प्रोपोर्शन होगा, वो इतना प्रोपोर्शनेट फेस होगा कि वो आपकी आई को कैच करेगा. सो इट इज़ एक्चुअली ब्यूटी परसेप्शन इज अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट. इट हैज़ नथिंग टू डू विद द बाउंड्रीज और कंट्रीज, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद द कलर ऑफ योर स्किन. So if you look at these pictures, different women from different ethnic origins, but they all look beautiful. Why? Because you are actually seeing with your eyes, but it is the perception in your brain that finally triggers which face is beautiful and which face is less attractive. I would not say that not beautiful, because every face has some kind of beauty in it. And there is a study that shows that even kids who are rather infants who are 3 to 6 months old, they have an innate ability to find out which face is more attractive. And if they are in a gathering, they would follow those faces which are more attractive. So beauty perception is actually an innate quality of human brain. This is an article I would like all of you to actually read, and read it over and over again, because this is a life changer. This is a game changer in aesthetic medicine. This is the 5 concept that came from Arthur Swift and Remington in 2011, and I was lucky enough to actually attend a hands-on workshop in 2012 right after the publication of this article. And this is a life changer for all of those who are practicing aesthetics, because this 5 concept, the beautification, each and every part of your face is beautifully described in this article, and every single aspect that you would ever come across has been written in these 10 pages. So the Magnificent 7 has already been discussed, that it is the facial shape, it is the forehead height, it is the eyebrow shape, the intercanthal distance, the nasal shape, the lips and the skin clarity that actually defines a face beautiful or less beautiful. So there is also a concept of positive vectors and negative vectors that we'll come across later on in the next slides, but these has to be kept in mind. If you look at these 6 pictures, which pictures would you find are more attractive? Generally, which one do you think are more attractive? It's the same person. 5, 6 from this side. 5. Okay. So let's have it's an audience which are actually saying 5 and 6. So let's have a look. It's 5 and 6 actually. Everywhere in the world, wherever you just portray this image, and you ask the public, and they would always tell you it's 5 and 6. Why? Because 5 and 6 are more close to the fire ratio. They are more close to the golden divine ratio. So that's why these faces are more attractive. It's the same person. It's actually that I said before, we look with our eyes, but we see with our brains. It's the brain perception, it's the maths, it's a calculation in the mind that makes it beautiful or less attractive.
So it's phase number 1 and it's phase number 5. What is the difference? If you see, as Dr. Raza has already explained, starting from the eyebrows, you see that the eyebrows are much defined in number 5. They have better projection, better arch. The eye is more wider looking in image number 5. And if you see the nasal shape and the projection of tip and also the definition of tip and the jaw definition and chin projection is better in image number 5. It's the same person. That is how you can correct or make a face look more attractive or more beautiful with fillers using toxins and using other modalities. So beauty is in mass or beauty is in symmetry. The golden ratio we've already discussed, so I'll skip some of these slides. And we now come to the aging and anti-aging. Now we have discussed the concept of beauty, and now I'm coming to aging, and I focus a little more on this topic because this has not been discussed since morning. If you look at all these images, it's the same person at different ages. Do you see any difference? Yes, of course we see a lot of difference. So this is the change that happens with age, that happens with time. A smiling face, all positive vectors, all going up, smiling face, lips projecting upwards, cheek projecting upward, corner of eyes going upwards are all actually melting down with age. So this is what age does to us. And this is what COVID does to us. Characteristics of aging is that if you look at both the pictures, you see that there is more volume on the lower part of the face. There is loss of volume in the upper part of the face. Everything is going down, the folds become deeper, and there is asymmetry in the face besides descent. So skin aging, when you consider skin aging, there are 4 Ds that you have to consider. It's deflation, deterioration, descent, and disproportion. You see all the 4 images, and you find all these things happening in these pictures with time and age. And this is same person at age 35, 45, and 55. So what are the complaints that our patients are going to tell us, or what are the things that we are going to see when we look at any patient's face or any person who walks in your office? पेशेंट्स कहेंगे हमारी स्किन ड्राई फील होती है, हमें फाइन लाइंस नजर आती हैं चेहरे के ऊपर, हमें आईज के इर्द गिर्द फाइन लाइंस आती हैं डॉक्टर साहब, ये चीज़ें हम सुनते हैं ना डेली अपनी डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर. कॉर्नर्स जो है हमारे ज़रा ठीक कर दे, हमारी सैड स्माइल नहीं होनी चाहिए. पेशेंट्स ये भी कहते हैं हमें फ्रैकलिंग हो गई है स्किन के ऊपर, स्किन का कलर ख़राब हो गया, टेक्सचर ख़राब हो गया, ऐसे करते हैं तो स्मूथ नहीं लगता, पोर्स आ गए हैं. और क्या इसके बाद जो लेटर एजेस के अंदर जो लेडीज़ आती हैं वो क्या कहती हैं कि जी हमें ड्राई स्किन के अलावा हमें हमारे रिंकल्स नज़र आते हैं, हमारी स्माइल लाइन बहुत डीप हो गई है, या हमारी स्लीप लाइन्स बन गई है, या डॉक्टर साहब थोड़ा सा ऐसे कर दें. मोस्ट ऑफ द टाइम जो ये सब के ऐसे कर दें, वो बेसिकली जाउल्स को और साइडिंग अपनी जॉ लाइन को एड्रेस कर रही होती है और चीक बोन्स को एड्रेस कर रही होती है. तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो एक्चुअली साइंस ऑफ एजिंग है और कंप्लेंट्स हैं जो हमें एड्रेस करनी पड़ती हैं. एंड दिस इज ऑल एजिंग. So at tissue level, what is happening is, if you look at younger skin and older skin, you will find that younger skin जो है वो ज़्यादा thick है, उसके अंदर ज़्यादा definition है, उसके अंदर collagen ज़्यादा बेहतर quality का है, उसके अंदर blood vessels बेहतर है. So this is the difference. This is the degeneration that takes place with age. This is the change that happens at collagen and elastin level. उसमें ज़्यादा breakage होता है collagen का DNA डैमेज की वजह से, अल्ट्रावायलेट की रेडिएशन की डैमेज की वजह से, इसके अलावा ग्लाइकेशन की वजह से, डाइट जो गलत लेते हैं उसकी वजह से, एजिंग प्रोसेसिंग सेल्फ की वजह से, कॉस्मेटिक यूजेस की वजह से, ये चीज़ें collagen टूट हो रही होती है और we have to build it. Also, the blood supply is reduced in older skin. कम न्यूट्रिशन मिलती है, कम सप्लाई मिलती है न्यूट्रिशन की, कम हेल्दी लगती है, कम ग्लो होती है, आपकी स्किन उतनी हेल्दी नहीं लगती है. इसी तरह आप जब डीपर टिश्यूज के अंदर देखते हैं तो फैट एट्रोफी भी हो रही होती है. नॉट जस्ट द सुपरफिशियल फैट, इट्स एक्चुअली द डीप फेस जो डीप फैट कंपार्टमेंट्स होते हैं उसकी डीजेनरेशन, डिसेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हो रही होती है. एंड इसी तरह बोन लेवल के ऊपर भी चेंजेस आ रही होती है एजिंग के साथ. इट्स नॉट जस्ट द फैट कंपार्टमेंट्स और मसल्स, इट्स द बोन टू. सो जो पहले मैंने आपको इमेज दिखाया था जो स्माइली फेस को पॉजिटिव वेक्टर्स नेगेटिव वेक्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो ये चीज़ हो रही होती है कि विद एज देयर इज अ शिफ्ट इन द पावर ऑफ डिप्रेसर्स एंड एलिवेटर मसल्स, एंड द डिप्रेसर्स दे टेक ओवर. जो एलिवेटर मसल्स हैं वो उतने स्ट्रांगली काम नहीं करते, डिप्रेसर मसल्स ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं और इधर हमारे न्यूरोमॉड्यूलेटर्स का
काम आता है, जो हम लोग आगे अपने टूल बॉक्स में देखेंगे। So when you talk about beautification and age reversal for a dermatologist or any aesthetic practitioner, this is what is available in our toolbox. Everything in itself is a very strong modality in itself, but when you combine them together, they become even more powerful. So you see it's HA fillers, which is very commonly used, much talked about, much taught about as well. Non-HA fillers, neuromodulators, जिसको हम बोटॉक्स भी कहते हैं, threads, lasers, RF, ultrasound, इसके अलावा स्किन बूस्टर्स, जिसको हम बहुत निगलेक्ट करते हैं मेरे हिसाब में, मेसोथेरेपी एंड PRP, माइक्रो नीडलिंग, स्किन केयर प्रोडक्ट्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस्मेटिक्स, styling and self-grooming. This is also a very important thing, and we'll see in a minute why. फिलर्स क्या करते हैं? फिलर्स में हमारे पास दो किस्म के फिलर्स आते हैं। एक HA फिलर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं, कॉमनली यूज़ होते हैं। एक नॉन HA फिलर्स होते हैं जो बेसिकली आपको वॉल्यूमाइज करने के साथ साथ कॉलेजन बूस्टर्स भी होते हैं, नीचे जाके कॉलेजन भी बिल्डअप करते हैं। जो मैंने आपको पिक्चर में दिखाया था कि कॉलेजन टूट जाती है, टाइप 1 कॉलेजन आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं स्किन में, तो जो नॉन HA फिलर्स होते हैं वो बेसिकली उसके ऊपर काम करते हैं। इसके अलावा फिलर काम क्या करते हैं? वो हाइड्रेट करता है, बिकॉज एक हाइड्रोफिलिक एजेंट है, वो पानी को अट्रैक्ट करेगा, हाइड्रेट करता है, वॉल्यूम रेस्टोरेशन करता है, कॉलेजन फॉर्मेशन करता है। इसी तरह जो एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस हैं या जो नीडलिंग होती है और स्किन बूस्टर्स हम अप्लाई करते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? इन्फ्लेमेटरी कैस्केड को जनरेट करेंगे, न्यूकोलिजेनेसिस करेंगे, नई कॉलेजन बनेगी, ब्लड सप्लाई बेहतर होगी टिश्यू रिमॉडलिंग होगी, स्किन की सरफेस बेहतर होगी, उसमें ल्यूमिनोसिटी आएगी, क्लैरिटी आएगी, उसका टेक्सचर बेहतर होगा। वो सारी कंप्लेंट्स जो मैंने आपको कही थी कि डॉक्टर साहब स्किन रफ हो गई है, खुरदरी लगती है, ओपन पोर्ट है, उस सारी चीज़ को एड्रेस करेंगे। एंड इट विल वर्क ऑन एपिडर्मिस, इट विल वर्क ऑन डर्मिस, इट विल वर्क ऑन हाइपोडर्मिस, एंड इन सम केसेस इट विल वर्क ऑन लिगामेंट्स एंड इट विल वर्क ऑन फैट कंपार्टमेंट्स एज इन द केस ऑफ HIFU. It goes deep and it works there. And also in case of threads. न्यूरोमॉड्यूलेटर्स क्या कर रहे होते हैं? ये बेसिकली आपके मसल्स को बैलेंस कर रहे होते हैं। जो मैंने पहले बोला था कि जो मसल आपके एलिवेटर्स हैं वो टाइम के साथ डिप्रेसर्स टेक ओवर कर लेते हैं, तो आप जो डिप्रेसर्स हैं उनको एंटेगनाइज कर देते हो बाय यूजिंग न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। मसल्स को कई जगह पे आप रिलैक्स करते हो, कई जगह के ऊपर आप एंटेगनाइज करते हो और फेशियल स्कल्पिंग करते हो। With threads, which I believe is a very powerful tool, you not only reposition the soft tissue and work on fat compartments and ligaments and reverse the descent and displacement of the tissue, but you are also doing neocollagenesis because threads जिस मटीरियल का बना होता है वो स्किन के नीचे जाके कॉलेजन बिल्डअप करता है, बहुत अच्छी क्वालिटी कॉलेजन भी बनाता है और वहाँ पे स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर भी बेहतर होती है। मैनेजमेंट प्लान में कुछ पेशेंट्स की पिक्चर्स देखेंगे और आपके साथ इंटरैक्टिव पूछेंगे कि इनका मैनेजमेंट प्लान क्या होना चाहिए। कुछ पिक्चर्स मैंने इस आर्टिकल से ली है, सो फोटोकर्टेसी इज ऑफ कोर्स आर्टिकल, एंड कुछ हमारे अपने पेशेंट्स हैं। सो आप जो तो पिक्चर्स आर्टिकल की हैं आप वो पिक्चर्स ले लीजिए जो हमारे पेशेंट्स की हैं, उनको आई वुड रिक्वेस्ट कि आप उनकी फोटोग्राफ मत करें, बिकॉज वो थोड़ा सा पेशेंट्स ने सिर्फ इस यूज़ के लिए ली होती है कि हम किसी जगह पर प्रेजेंट करेंगे। सो इफ़ यू लुक एट दिस स्लाइड, आप देखें ए और डी के अंदर जो पेशेंट है उसका कुछ भी नहीं हुआ अभी फेस पे, ठीक है। बी एंड ई स्लाइड के अंदर हमने यहाँ पे टॉक्सिन भी यूज़ किया है और हमने फिलर्स भी यूज़ किए हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप सी इमेज को देखते हैं तो वहाँ पर मेकअप, स्टाइलिंग, हेयर स्टाइलिंग में सारी चीज़ें हैं जो मैंने कहा था कि वी फॉरगेट दोस थिंग्स। मेकअप से भी लोग थोड़ी सी आंखें थोड़ी अपनी पॉजिटिव एक्टर्स कर लेते हैं, ऊपर कर लेते हैं, ब्राउ की लेंथ को और आर्च को बेहतर कर लेते हैं। सो ऑल दोज थिंग्स आर डन। एंड आप जब एफ के अंदर देखते हो तो ये एक हेमी फेशियल कंपैरिजन है बिफोर एंड आफ्टर का। So all these things have to work together to give you the best results. Now when you look at this face, आपको क्या लगता है कि इसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? अगर आप अपने अपर फेस, मिडिल एंड लोअर फेस के अंदर डिवाइड करके आप बताना शुरू करें तो हाउ वुड यू, आप इसमें क्या चीज़ें चेंज करना चाहेंगे, इम्प्रूव करना चाहेंगे, क्या चीज़ें जो प्रॉब्लमैटिक हैं? फोरहेड के लाइन्स हैं, इसके अलावा फ्राउन लाइन्स हैं, आइज को देखें, आर्च को देखें, ब्राउ की आर्च नीचे आई हुई है, काफ़ी ज़्यादा क्रोज पीस बने हुए हैं, ठीक है। आपने लोअर लिड को भी देखना है। लोअर लिड में क्या किया हुआ है कि काफ़ी हद तक उसको कवर किया हुआ है आंखों को, क्योंकि ऑर्टिकुलरिस ऑक्यूलाई काफ़ी कई लोगों में स्ट्रांग हो जाता है विद टाइम एंड एज। सी लाइन आपको पता है ना कि जो आई लैशेज होती है समथिंग तो अंदर रोल करके तंग करने लग जाती हैं,
एजिंग का एक ये भी फैक्टर होता है। इसके अलावा जब आप उनकी पूरे मिडिल फेस को देखते हो तो उसके अंदर भी वॉल्यूम डिक्रीज हो गया है, वॉल्यूम लॉस है, जो एपेक्स चीक के वो नीचे चली गई हुई है। और अगर जॉ लाइन पे देखो तो अच्छे खासे जाउल्स बन चुके हुए हैं, मेरिनेट लाइंस हैं, नेज़ोलेबियल फोल्ड्स हैं, इसके अलावा स्मोकर्स लाइंस हैं। काफ़ी कुछ है जो कि करेक्ट होने वाला है। अब आपका मैनेजमेंट प्लान ऐसे पेशेंट के लिए क्या होगा? क्या कि आपको कुछ नहीं हो सकता? चलिए थ्रेड्स करें और क्या कर सकते हैं? फिलर्स, थ्रेड्स, बोटॉक्स, ऑफ कोर्स बोटॉक्स, काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आपने पेशेंट को बिठाना है, पहले उसको बताना है कि आप जिस स्टेज पे हमारे पास आए हैं तो बहुत सा डैमेज हो चुका है, तो हमने बहुत ज़्यादा काम करना है एंड वी हैव टू वर्क टुगेदर एज अ टीम। जितनी दफ़ा मैं बुलाऊँ अपने आना है, ठीक है? सो यू हैव टू, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं। अब आप देखो कि इसकी ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, रियल पिक्चर है, रियल पिक्चर है। आप मेरी पिक्चर नहीं है, ये मैंने पहले कहा था आर्टिकल पढ़ना, उसमें ये पिक्चर। अब क्या क्या कुछ किया हुआ है, लेट्स गो बैक एंड सी कि किया क्या क्या कुछ था उन्होंने। देखिए उन्होंने ब्यूटिफिकेशन के लिए सबसे पहले टॉक्सिन यूज़ किया, फोरहेड के ऊपर भी, ग्लोबुलर लाइंस के ऊपर भी, ब्राउ एरिया के ऊपर भी, क्रोस फीट के ऊपर भी, और जो मैं आंख का आपको नीचे वाला कह रही थी ना, जो लोअर लिड है जो बहुत रोल अप कर रही थी, उसको भी उन्होंने हल्का सा रिलैक्स किया है टॉक्सिन के साथ, ठीक है? उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने थोड़ा सा बोटॉक्स किया इनके सारे जॉ लाइन एरिया के ऊपर, जिसको हम नेफिटिटी नेक लिफ्ट कहते हैं। उन्होंने इनके जो डिस्टल बैंड्स हैं उसको करेक्ट किया बोटॉक्स के साथ, और इसके अलावा उन्होंने बोटॉक्स किया है मेरिनेट लाइंस को भी थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए, डिप्रेसिव एंगुलर और इसके ऊपर भी थोड़ा सा बोटॉक्स किया, नीचे सब कुछ लिखा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने वॉल्यूमाइज किया है और ने फ्रैक्शनल रिसर्फेसिंग की है, क्योंकि खाली बोटॉक्स एंड फिलर्स नहीं करने आपने, स्किन बूस्टर्स, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस आर वेरी पावरफुल टूल्स, एंड स्पेशली जब पेशेंट का कलर साफ हो, टाइप 1 एंड टाइप 2 के अंदर आपको डर भी नहीं होता पोस्ट इन्फ्लेमेटरी hyperpigmentation, you can always use these modalities very easily. Now coming to the next picture, young face है, कोई डिसेंट नहीं है, कोई डिटोरिएशन नहीं है, कोई डिफ्लेशन नहीं है, वो जो 4 Ds ऑफ एजिंग है वो नहीं है। हमने क्या करना है, सिर्फ ब्यूटिफिकेशन करनी है। तो अगर आप बिफोर पिक्चर में देखो तो आईज, आईब्रोज सब आपको ठीक लग रही है, नोज भी ठीक लग रही है, चीक्स भी इसकी फिल्ड है, लिप्स भी इसके सेम प्रोपोर्शन में लग रहे हैं। डू यू फाइंड कि ये सारी चीज़ें ठीक है? इवन चिन भी उनकी अच्छी है, प्रोजेक्शन भी चिन की अच्छी है। द प्रॉब्लम इसके फेस बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, मैसेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारे पास पेशेंट्स आके कहेंगे नहीं जी मुझे कुछ करें डॉक्टर साहब, कुछ कर दें प्लीज़। सो यू हैव टू एनालाइज, क्रिटिकली एनालाइज द फेस। समटाइम्स वो बहुत एविडेंट होता है, समटाइम्स बहुत ज़्यादा एविडेंट नहीं होता। It's 8 out of 10 or 9 out of 10 patient walking in your office and then they ask you to beautify them. आप इस पे क्या करते हैं, आपने इनको बोटॉक्स किया मैसेजेस पे, सिर्फ बोटॉक्स किया मैसेजेस पे, एंड आफ्टर की पिक्चर में देखो उसकी बिल्कुल एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी, बिकॉज उसका फेस की शेप ओवल हो गई है। इसी तरह से ये भी एक यंग पेशेंट है, 24 इयर्स की मेरी अपनी पेशेंट है, और आप देखो ऑफ कोर्स स्किन की क्लैरिटी की बहुत सख्त ज़रूरत है, एक्ने को ठीक करना है, स्किन की क्लैरिटी चाहिए, लेकिन आप देखो कि इसकी चिन डेफिशिएंट है, चिन उसकी काफ़ी डेफिशिएंट है, उसका अपर लिप भी डेफिशिएंट है, उसकी थोड़ी सी मेरिनेट लाइन भी इसकी वजह से बन रही है, या सैड स्माइल जिसको कहते हैं वो बन रही है। तो आप थोड़ा सा फिलर के साथ करेक्ट कर सकते हैं। इसको मैंने फर्स्ट टाइम फिलर किया था जस्ट टू सी कि तुम्हें सूट करता है कि नहीं, क्योंकि शी वॉज टू यंग व्हेन शी केम टू। इनकी 2 दिन के बाद शादी है एक्चुअली, ये बहुत पुरानी पेशेंट है मेरी, ये टीनेज में मेरे पास आना शुरू किया था। थोड़ी सी मैंने इनकी चिन की और इनकी जॉ लाइन की डेफिनेशन करके देखा था एंड इट सूटेड हर रियली। मैंने अदरवाइज शी कैन गो फॉर अ सर्जरी, अगर इसने बहुत ज़्यादा अपनी चिन ऑगमेंटेशन करानी है तो शी कैन ऑलवेज गो फॉर अ सर्जरी। सो इट सूटेड हर, इट वर्क फॉर हर, एंड देन वी री ऑगमेंटेड, थोड़ा सा और इसको ऑगमेंट किया था। लेकिन आप देखो थोड़े फिलर के साथ भी जॉ लाइन की डेफिनेशन आने लगती है। इसी तरह ये पेशेंट आप देखो स्किन भी क्लियर है, आईज भी अच्छी हैं, वाइड ओपन आईज हैं, नोज भी सही, क्यूपिड बो अगर आप देखते हो वो भी सही है, लिप्स की प्रोपोर्शंस, फुलनेस भी बिल्कुल सही है। द ओनली प्रॉब्लम वाज हर मैसेजर्स वाज टू ब्रॉड, फेस वाज टू ब्रॉड, और सिर्फ टॉक्सिन के साथ उसकी लुक एक पूरी चेंज हो गई। इसी तरह कुछ इस तरह के फेसेस भी, ये एक आर्टिकल से मैंने लिया, मैंने नीचे लिखा PRS की पिक्चर है। आप देखो इसमें जब आप साइड व्यू से देखते हैं तो आप देखते हैं कि चीक बहुत फ्लैट है, कोई ओजी कर्व वगैरह नहीं आपको नजर आ रहा, बहुत फ्लैट है। इंटीरियर उसकी जो है वो फिलिंग की ज़रूरत है, इंटीरियर प्रोजेक्शन की ज़रूरत है।
सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट अ लिटिल फिलर ओवर हियर, क्योंकि ये यंग पेशेंट है, एंटी एजिंग की ऐसा ज़रूरत नहीं हमें पड़ेगी, एंड देन वी ट्रांसफॉर्म दैट फेस। इसी तरह अगर इस फेस को भी देखें तो बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है। थोड़ा बोटॉक्स जहाँ जहाँ पे चाहिए उधर उधर हमने बोटॉक्स किया अपर फेस के अंदर मेनली, और उसके बाद लोअर फेस पे हमने इसको फिलर्स के साथ इम्प्रूव किया, इसके नेज़ोरेडियल फोल्ड्स को, पेरिनेट लाइंस को, जॉ लाइन को थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिली है। एंड ऑफ कोर्स इस पेशेंट के अंदर भी हम लोग अगर थोड़ी सी रीसर्फिसिंग करें, एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस यूज़ करें, माइक्रोनीडलिंग करें, स्किन बूस्टर सप्लाई करें, पीआरपी करें, तो ल्यूमिनोसिटी टेक्सचर बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाता है और मेंटेन भी करते हैं रिजल्ट्स को लॉन्ग। अनदर पेशेंट जो यंग पेशेंट थी, सिर्फ नेज़ोलेबियल फोल्ड्स थोड़े से आप देख रहे हो प्रॉब्लम है, और एंटीरियरली थोड़ी सी डेफिशिएंट है। थोड़ा सा फिलर कर दिया एंड आफ्टर में आप देखोगे वो काफ़ी उसकी लुक थोड़ी चेंज हो चुकी है। समटाइम्स लेस इज मोर, सो ऑलवेज ट्राई एंड स्टार्ट विद लेस वेयरएवर लेस इज नीडेड, उसमें पुश नहीं करना। इस तरह के फेसेस के अंदर क्या होता है कि जिसमें थोड़ी सी हॉलोज है आइज की गेट, तो उसको आप थोड़ा सा फिलर करके करेक्ट कर सकते हैं। फॉर दिस पेशेंट आप देखोगे इसके अंदर क्या क्या कुछ हो सकता है, ये बिफोर एंड आफ्टर की पिक्चर है। आप लोगों का क्या ट्रीटमेंट प्लान होगा? स्किन की क्वालिटी और टेक्सचर भी देखिए, जॉ लाइन भी देखिए, क्या क्या कुछ टूल बॉक्स में आप यूज कर सकते हैं टू ब्यूटिफाई एंड डू एंटी एजिंग बोथ। ऑफ कोर्स इनकी आप देखो कि काफी फेस जो पिक्चर जो बिफोर वाली पिक्चर है उसमें लग रहा है कि बहुत हेवी फेस है इस जगह पर, क्योंकि सारा का सारा जो फैट कंपार्टमेंट्स है वो मूव करने लगे हैं, डिस्प्लेस होने लगे, तो वी हैव टू रीपोजिशन द फैट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप थ्रेड्स भी कर सकते हैं, आप हाइफू कर सकते हैं एनर्जी बेस्ड डिवाइसेस में, आप स्किन की रीसर्फिसिंग करोगे ताकि ऊपर से जो स्कार है क्वालिटी ऑफ स्किन वो बेहतर हो, और ऑफ कोर्स आप उसके बाद थोड़ा बहुत किसी जगह पर अगर ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे फिलर की ज़रूरत है अगर या बोटॉक्स की ज़रूरत है अराउंड भी आएंगे तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस पेशेंट के अंदर हमने सिर्फ हाइफू किया था, एंड ये मेरी दोस्त डॉक्टर सादिया चीमा की पेशेंट की पिक्चर है, ओनली हाइफू 2 सेशंस, एंड दैट हैज गिवन हर रिमार्केबल रिजल्ट्स। Yes, we can do that. Of course we can do that if she is willing. आप उसका डिस्कस करें। लिप्स को भी मेरे तो ख्याल में ज़रूरत है, अगर आप उनका फ्रंट व्यू देखें तो लिप्स को भी ज़रूरत है, लेकिन ऑफ कोर्स वो इसलिए आए कि ये सैगिंग हुई थी है, एंड ये मेरी पिक्चर नहीं है, डॉक्टर सादिया चीमा के मेरे काम में इट इज़ वेरी गुड रिजल्ट फॉर हाइड्रोसिस। इस पेशेंट को आप बिफोर एंड आफ्टर में देखिए। अपर फेस को देखें पहले, फिर मिडिल फेस एंड देन लोअर फेस। ऑलवेज इस तरह से स्टार्ट किया करें अपने पेशेंट को, क्योंकि पेशेंट आके कहते हैं आप बताएं कि क्या करना है, वो नहीं बताते, और कई दफ़ा वो कहते हैं मुझे ये कर देते हैं। यू हैव टू असेस योर पेशेंट। आप अपर फेस में देखें तो फोरहेड के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पर हॉलो लग रहा है फोरहेड, ये वाली जगह फोरहेड की हॉलो लग रही है और लाइंस भी हैं। यू कैन ऑलवेज गिव लिटिल बोटॉक्स टू इम्प्रूव द लाइन, एंड आप थोड़ा सा फिलर भी कर सकते हो यहाँ पे जो बोन रिजॉर्प्शन हो चुकी है फोरहेड के ऊपर, लेकिन वेरी केयरफुली, जैसे कि पहले बताया है सुबह भी हम लोगों ने कि यहाँ पर आपकी जो आर्टीरियल सप्लाई है, जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो बड़ी, आपने उसको वॉच करना है। उसके बाद जब आप आई एरिया को देखते तो अच्छे खासे आई बैग बने हुए हैं, मिड फेस के अंदर डिसेंट आई हुई है। आप देखो कि मिडिल में जो फेस का जो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट आप देखो बिल्कुल ड्रूपी है, बिल्कुल ड्रूपी है ये वाली जगह फेस की, ये वाली जगह, इस बात ये इधर फोकस करें, ये वाली जगह, दिस इज वेरी ड्रूपी, ये वाली जगह, ठीक है। इसी तरह ये वाला एरिया भी अगर फोकस करो, इस एरिया पे भी फोकस करो, तो ये भी बहुत, ये सारी इंडिकेशन है यंग एज के अंदर आती है।
तो अभी से कंट्रोल करें तो इट्स ऑलवेज गुड। अभी से अपने पास जो आपके पास आता है एडवाइस लेने के लिए, उनको राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपने उनको बताना है कि इस चीज़ का आपने ख्याल रखना, नहीं तो फिर कुछ ऐसे के बाद बहुत डार्क हो जाती है आइज और प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। इसके अलावा नेज़ोलेबियल फोल्ड्स अगर आप देखो तो थोड़ा सा एक साइड पे, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया था कि एक साइड हमारी ज़्यादा एक्सप्रेशन देती है और एक साइड हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हैवी होती है। तो राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड के अंदर हमें यहाँ पर भी डिफरेंस लग रहा है। सो यहाँ पे हल्की सी डीपर है नेज़ोलेबियल फोल्ड और दूसरी साइड के ऊपर रिलेटिवली ना होने के बराबर है। तो आप उसको कैटेगराइज करते हैं नेज़ोलेबियल फोल्ड को भी माइल्ड, मॉडरेट एंड सिवियर के अंदर। तो यहाँ पे तो ऑलमोस्ट ना होने के बराबर या माइल्ड कह सकते हैं, हल्का सा मॉडरेट है। और वो भी इस वजह से कि अगर आप इधर फोकस करो, इस जगह के ऊपर अगर आप फोकस करें और स्ट्रेट बैठें तो यहाँ पे हल्की सी वॉल्यूम डेफिशिएंसी है। अगर हम थोड़ा सा वॉल्यूमाइज इधर करें तो नेज़ोलेबियल फोल्ड वैसे ही चला जाएगा। सो वॉल्यूम प्लेसमेंट शुड बी ऑन द एपेक्स ऑफ द चीक एंड ऑन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द फेस, यहाँ पर हल्की सी। नेज़ोलेबियल फोल्ड उसकी वजह से भी इम्प्रूव हो सकता है। दूसरा जो नेज़ोलेबियल फोल्ड है, अगर हम बिल्कुल गो डाउन ऑन द बोन, यहाँ पर अगर थोड़ा सा इंजेक्ट कर दें तो भी ये इम्प्रूवमेंट आ सकती है। इसके अलावा क्या ब्यूटिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि यंग है, स्किन टेक्सचर भी अच्छा है, क्वालिटी भी अच्छी है, वो ज़्यादा फिलर्स, बोटॉक्स इसकी तरफ नहीं जाना चाहती। तो जो आज हम डेमो करेंगे वो ये प्रोडक्ट है हमारे पास, विच इज़ कॉल्ड प्रोफाइलो। प्रोफाइलो इज़ अ कॉम्बिनेशन, इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ hyaluronic acid. It is not used as a filler, it is rather used as a skin booster. स्किन को रिजुविनेट करने का एक टूल हमारे पास, जो टूल बॉक्स है उसमें एक ऐड हो गई है चीज़ कि आपके पास हाइलुरोनिक एसिड है जो कि खुद से आप 5 पॉइंट्स के ऊपर इंजेक्ट करते हो। बायो सेटिक पॉइंट्स हैं फेस के ऊपर, जो भी हम मार्क करेंगे उधर आप इंजेक्ट करते हो 5 पॉइंट्स के ऊपर, और वो खुद से वहाँ पर एक तो हाइड्रेट करता है टिश्यू को, रिमॉडलिंग भी करता है वहाँ पर, और स्किन को बहुत अच्छा टेक्सचर दे देता है और शाइन दे देता है। जो भी आपके पास यंगर एज ग्रुप के लोग आते हैं, आप एकदम से उनको फिलर्स के ऊपर, बोटॉक्स के ऊपर अगर ज़रूरत नहीं है तो मत पुश करें। आपके पास बहुत सी और चीज़ें बॉक्स में ट्राई यूज़ हैं। इसके अलावा जो थोड़ी एजिंग वाले पेशेंट्स भी आते हैं उसके अंदर भी इसके बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं, बिकॉज ऑफ कोर्स उनको ज़्यादा डिहाइड्रेशन चाहिए, रेस्टोरेशन चाहिए एंड कोलेजन बूस्टिंग चाहिए। सो विल मार्क द 5 पॉइंट्स। अब आपके क्वेश्चन विल मार्क 5 पॉइंट्स, बहुत ईजी पॉइंट्स हैं। उन पॉइंट्स के ऊपर हमने सिंपल इंजेक्शन करना है इन द स्किन। ये तो हमने एक सिंपल फेस मैचिंग कर दी है, इनकी हमने सिर्फ एक सिंपल फेस असेसमेंट की। जो इसके जो एरियाज हैं, बायो एस्थेटिक जो पॉइंट्स हैं वो 5 पॉइंट्स हैं। एक हम लोग पॉइंट इनका सबसे पहले जो लेते हैं हम बिल्कुल जाइगोमा के ऊपर लेते हैं, और अगर हमारे पास कोई मेजरिंग टेप है या अगर रूलर है तो फिर हम एग्जैक्टली हमने यहाँ जो लैटरल कैंसस है उससे 1.5 to 2 सेंटीमीटर नीचे आना है, और जो हाईएस्ट पॉइंट है जाइगोमा का वहाँ पर हमने एक अपना इंजेक्शन पॉइंट बनाना है। दिस पॉइंट शुड नॉट बी, आपको आवाज़ ठीक आ रही है? सॉरी। अच्छा, दिस पॉइंट शुड नॉट बी क्लोज, वेरी क्लोज टू द आई एरिया। वाई? बिकॉज अगर वो प्रोडक्ट आप बहुत क्लोज टू द आई लगा देंगे तो वहाँ पे पेशेंट को कुछ दिन के बाद स्वेलिंग की कंप्लेंट होने लग जाएगी। स्वेलिंग की कंप्लेंट इसलिए होगी कि जो प्रोडक्ट है वो हाइड्रेशन लेके आएगा स्किन के अंदर, वो खुद से डिफ्यूज़ होगा और हाइड्रेट करने की कोशिश करेगा। तो हमें यहाँ पे स्वेलिंग हो, वो भी ज़्यादा जो आपकी थोड़ी सी एजिंग वाली स्किन होती है उस पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। सो आपने अवे फ्रॉम, इसलिए ये जो पॉइंट आपने मार्क किया कि आपने लैटरल कैंसस से नीचे जाइगोमा के हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर और तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे आके यहाँ पर आपने इंजेक्ट करना। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा जो आपका पॉइंट है वो आपको पता है कि नेज़ोलेबियल फोल्ड से आपने यहाँ जो आपका यहाँ से आपने तकरीबन इधर से भी 2 सेंटीमीटर अवे नॉस्ट्रिल से, और नेज़ोलेबियल फोल्ड को आपने अवॉइड करना है। रीज़न बीइंग आपको पता है आपने ये इंजेक्शन सुपरफिशियली इंजेक्ट करना है, वेरी सुपरफिशियल। और जो अभी हम लोगों ने देखा जो आर्टरी आ रही है यहाँ से, वो यहाँ पर करीब आके नेज़ोलेबियल फोल्ड के जितना करीब होती जाती है, जितना सुपरफिशियल जितना ऊपर जाती है वो सुपरफिशियल होती जाती है। तो यहाँ पर आपने इस एरिया को बिल्कुल अवॉइड करना है। यू विल ट्राई एंड स्टे एटलीस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ये जो हाईएस्ट पॉइंट है नेज़ोलेबियल फोल्ड का, ठीक है।
यहाँ से आपने तकरीबन 1 to 2 सेंटीमीटर अवे रहना है। यहाँ पर एक आपका पॉइंट पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर है, बिल्कुल यहाँ पर करके जोर से आप चेंज करें। एक पॉइंट आप यहाँ पे करेंगे, ट्रेगस के बिल्कुल सामने भी इसी तरह 1 to 1.5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ट्रेगस। एक पॉइंट हो गया। जो फिफ्थ पॉइंट है वो आपने ये जो कॉर्नर ऑफ माउथ है इससे आपने नीचे आना 1.5 सेंटीमीटर एंड टुवर्ड्स थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ जाना और यहाँ पे आपका पॉइंट बनेगा। अगर आप पास रूलर हो तो एग्जैक्टली मार्क भी कर सकते हैं, लेकिन तकरीबन ये आपका 1.5 सेंटीमीटर बनता है। इस तरह से आपने मार्किंग्स करनी है और इन सारे पॉइंट्स के ऊपर आपने सिंपल इंजेक्शन है जो कि आपके पास 2 cc की सिरिंज में प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है। 1 cc आप एक साइड के ऊपर इंजेक्ट करेंगे, 1 cc आप दूसरी साइड पे इंजेक्ट करेंगे। टू बी प्रिसाइज मैं हमेशा इसको छोटी सिरिंज में डाल लेती हूँ, बड़ी सिरिंज को मैं नहीं यूज़ करती ताकि मुझे एग्जैक्ट पता हो कि मैंने कितना प्रोडक्ट दोनों साइड्स के ऊपर यूज़ किया। ठीक है, दूसरी साइड के ऊपर भी हम मार्किंग कर लेते हैं, देन विल इंजेक्ट। इंजेक्शन टेक्स ओनली 2 minutes। इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पर भी लैटरल कैंथस से आप नीचे आए, ज़ाइगोमा का हाईएस्ट पॉइंट देखा, लेकिन आपने नीचे रहना है ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर नीचे। एक आप ट्रेगस के सामने, एक आप बिल्कुल एंगल ऑफ मैंडिबल के ऊपर, एक आपने नॉस्ट्रल से ऑलमोस्ट 1 to 2 सेंटीमीटर अवे, और एक आपका जो ये जो लिप का कॉर्नर है उससे नीचे आने और थोड़ा सा मिड लाइन की तरफ जाके ये आपके बायो एस्थेटिक पॉइंट्स है 5। क्योंकि ये 2 cc की सिरिंज में प्री फिल्ड इंजेक्शन आता है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओपन अप द प्रोडक्ट एंड एक कनेक्टर लेके, ये जो कनेक्टर होता है इस कनेक्टर के साथ हम इसको शिफ्ट कर लेंगे 1 cc सिरिंज के अंदर। कनेक्टर लगा लिया और जो ग्लास सिरिंज में यूजुअली मैं कोशिश करती हूँ कि प्रोडक्ट हम लोगों ने बैलेंस करना होता है, तो हम इसको शिफ्ट कर लेंगे 1 cc सिरिंज के। ये जो नीडल यूज़ कर रही हूँ मैं, ये बहुत छोटी नीडल है, शॉर्ट नीडल है, और इसकी बहुत छोटी एक तो ये शॉर्ट भी है, लेंथ भी इसकी कम है, और ये मेरे ख्याल में 33 गेज नीडल हम लेके आए हैं। हाँ जी, ये 32 गेज नीडल है, 32 गेज नीडल। हाँ, और आप इसकी लेंथ देखो तो बहुत छोटी लेंथ, इट्स अ वेरी शॉर्ट नीडल। It's a very short needle, very short needle। क्योंकि आपने डीप इंजेक्ट ही नहीं करना, यू वांट टू स्टे विद इन द डर्मिस, मैक्सिमम विद इन द डर्मिस, बस इससे नीचे आपने इंजेक्ट नहीं करना। और आपको क्योंकि 2 cc प्रोडक्ट है, 1 cc एक साइड के ऊपर 5 पॉइंट्स के ऊपर आपने डिवाइड करना है प्रोडक्ट, तो हर एक पॉइंट के ऊपर 0.2 cc आपने अपना प्रोडक्ट को इंजेक्ट करना। की यूजुअली ज़रूरत नहीं होती, पिन प्रिक तो फील होगी, लेकिन यूजुअली इसके लिए आपको नमिंग करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे यूजुअली पेशेंट कंप्लेंट करता है, इधर मैं लास्ट में लगाती हूँ।
0.2. मैडम कहना राइट लेफ्ट का डिफरेंस दिखा दें, फिर लेफ्ट साइड पे इंजेक्ट करें। एकदम से डिफरेंस ये इट्स नॉट लाइक अ फिलर, इट्स नॉट अ फिलर, इट्स नॉट अ फिलर कि राइट एंड लेफ्ट साइड के ऊपर हमें एकदम से भी चेंज लगेगा, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ी सी स्वेलिंग हो जाती है। प्रोडक्ट 5 पॉइंट्स को कर गया है, आपको इसके लिए वेट करना पड़ता है 15 डेज़। 15 डेज़ के बाद आपका पेशेंट आपको आके बताता है कि बहुत अच्छी स्किन में चेंज आ रही है, टेक्सचर बेहतर हुआ है, वॉल्यूमाइजेशन भी होती है। इवन जहाँ जहाँ पे जिस तरह यहाँ पर इनको मैंने कहा कि थोड़ी सी वॉल्यूमाइजेशन की ज़रूरत है, तो मैं थोड़ा सा प्रोडक्ट समटाइम्स आप टेलर भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा 1 cc इधर लगाएं, पूरा 1 cc उधर लगाएं। आप वहाँ से 0.2 ml बचा के इधर 2 पॉइंट्स भी एक्चुअली क्रिएट कर सकते हैं, ताकि थोड़ी यहाँ पे वॉल्यूमाइजेशन बेहतर हो जाए। इट्स फॉर योर अंडरस्टैंडिंग के 1 cc और 1 cc दोनों साइड में इंजेक्ट करना है। बट वेर एवर यू फील कि थोड़ी सी वॉल्यूमाइजेशन ज़्यादा चाहिए या थोड़ी रिजुविनेशन ज़्यादा चाहिए, वहाँ पर थोड़ा सा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा डाल दें। ऑलवेज यू कैन ऑलवेज सेव। देखिए मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट बचाया है, क्योंकि मैंने 1-2 जगहों पे थोड़ा कम डाल के मैंने इस जगह के लिए थोड़ा सा बचा लिया कि यहाँ पे हम इनकी थोड़ी सी वॉल्यूमाइजेशन बेहतर ताकि हो जाए। इधर थोड़ा सा और इंजेक्ट कर जो प्रोडक्ट बच गया हम लोग वो दूसरी साइड पे करेंगे। कनेक्टर जो था
इस नीडल में जब आप ये वाली सिरिंज यूज़ करते हैं और जब आप ग्लास सिरिंज यूज़ करते हैं, जब आप ये वाली सिरिंज यूज़ करते हैं, ग्लास सिरिंज यूज़ करते हैं, क्या डिफरेंस है? इसमें बहुत ज़्यादा आपको प्रेशर, बहुत ज़्यादा आपको पुश करना पड़ता है, क्योंकि ज़ाहिर है बहुत छोटी नीडल है और 33 गेज आप यूज़ करें तो प्रेशर बहुत ज़्यादा है। और जो ग्लास नीडल थी उसके अंदर मुझे इंजेक्ट करना आसान था, लेकिन वो कनेक्टर नीचे गिर गया तो वी कैन नॉट यूज़ दैट कनेक्टर, सो आई एम यूजिंग दिस जो इसकी अपनी सिरिंज है। लेकिन ये थोड़ी मुश्किल होती है, डिफिकल्ट है, मेरे ख्याल में उसमें डाल के ज़्यादा आसान होता है, पेशेंट के लिए भी कंफर्टेबल होता है क्योंकि आपका उतना प्रेशर नहीं होता हाथ में। हल्की सी एक एली उठता है हल्का सा, क्योंकि प्रोडक्ट्स आपके पास सुपरफिशियली इंजेक्ट करना है, जो वो उठेगा उसको आप हल्का सा मसाज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसको छोड़ देंगे खुद ही वो ऑब्जॉर्व हो जाएगा। इसकी कोई आफ्टर केयर भी नहीं होती है प्रोडक्ट इसकी ट्रीटमेंट की। This is difficult to inject. That was very easy. देखिए, देयर इज हार्डली एनी ब्लीडिंग और ब्रूजिंग और स्वेलिंग, और बिल्कुल जो पेशेंट है वो कंफर्टेबल है। राइट आफ्टर द ट्रीटमेंट वो अपने जो डे टू डे एक्टिविटी है वो आराम से रिजॉल्व कर सकते हैं, वापस रिज्यूम कर सकते हैं अपनी डे एक्टिविटीज़। जब भी आप कोई भी इंजेक्टेबल प्रोसीजर करेंगे, आप कोशिश ये करेंगे कि वो एरिया क्लीन हो और उसके ऊपर मेकअप वगैरह की एप्लीकेशन 24 आवर्स तक नहीं होनी चाहिए, चाहे वो जितना भी माइल्ड प्रोसीजर क्यों ना हो। 24 आवर्स तक मेकअप एप्लीकेशन होनी चाहिए, और कोई सूरज से बचना या धूप से या इस तरह की कोई चीज़ या बेंड नहीं करना या उसको मसाज नहीं करना, ऐसी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी प्रोडक्ट इस ट्रीटमेंट के साथ। एनीथिंग